امریکہ کا IMF اور پاکستان کے درمیان سٹاف لیول معاہدے کا خیر مقدم۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے پریس بریفنگ میں کہا کہ پاکستان نے اپنی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے پیش رفت کی ہے، قرضوں کے بوجھ کو سنبھالنے کے لیے پاکستان کی کاوشوں کی حمایت کرتے ہیں۔ پاکستانی وزیر خارجہ IMF اور عالمی بینک کے عہدیداران سے ملاقاتوں کے لیے واشنگٹن میں موجود ہیں۔ پاکستان کی اقتصادی کامیابی کے لیے ہماری حمایت غیر متزلزل ہے۔ معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اقتصادی اصلاحات کو ترجیح دینے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ میتھیو ملر نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ تکنیکی معاہدوں کے ساتھ تجارتی سرمایہ کاری کے ذریعے رابطے جاری رکھیں گے۔ یہ ہمارے دو طرفہ تعلقات کی ترجیحات ہیں۔ پاکستان اور بھارت کو کشیدگی سے گریز کرنے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ پاکستان اور بھارت مسائل کا حل بات چیت کے ذریعے تلاش کریں۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی G24 کی وزرائے خزانہ اور مرکزی بینک کے گورنرز کے اجلاس میں شرکت۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے IMF اور ورلڈ بینک کی پاکستان کو دی جانے والی امداد کو سراہا۔ وزیر خزانہ نے ٹیکسیشن، توانائی، نجکاری اور ڈیجیٹلائزیشن کے شعبوں میں اصلاحات پر تبادلہ خیال کیا۔ اجلاس میں نجی شعبوں میں سرمایہ کاری اور موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے نمٹنے کے لیے تعاون کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ ملک کو موسمیاتی تبدیلیوں کے منفی اثرات سے نمٹنے میں مدد کے لیے ایڈا پیٹیشن فنڈ سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر خزانہ نے پاکستان کی معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے حکومتی عزم کا بھی اظہار کیا۔ سعودی عرب پاکستان میں بڑی سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار ہے، پاکستان کی معاشی اقتصادی ترقی کے لیے کردار ادا کریں گے۔ سعودی وزیر خارجہ کی وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ کہا آئندہ چند ماہ میں پاکستان میں سعودی سرمایہ کاری کی طرف پیش رفت ہوگی۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع موجود ہیں۔ سرمایہ کاری سے متعلق اہم کام آئندہ چند ماہ میں ہو جائے گا۔ ہم باہمی اقتصادی خوشحالی اور علاقائی سالمیت کے لیے مل کر کام کرنا جاری رکھیں گے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستانی حکومت اور عوام میں سعودی عرب کا احترام ہے۔ سعودی عرب کے وفد کو باضابطہ طور پر SIFC سے آگاہ کیا۔ سعودی وفد کو زراعت، کانکنی اور توانائی کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع سے آگاہ کیا گیا۔ سعودی وفد کے ساتھ مختلف شعبوں کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ SIFC پلیٹ فارم کے ذریعے پاکستان سرمایہ کاری بڑھانا چاہتا ہے۔ پاکستان سرمایہ کاری کا مرکز بننا چاہتا ہے۔ سرمایہ کاروں کو ون ونڈو سہولت فراہم کریں گے۔ پاکستان کی سعودیہ کو PIA اور ایئرپورٹس کی نجکاری میں جوائنٹ وینچرز کی پیشکش۔ سعودی وفد کو IT، قابل تجدید توانائی سمیت دیگر شعبوں میں بھی سرمایہ کاری کرنے کی دعوت۔ سعودی وزیر خارجہ کی وزیراعظم پاکستان اور آرمی چیف سے ملاقات۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے اجلاس سے خطاب۔ کہا قابل تجدید توانائی ذرائع میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ پاک سعودی تعلقات مذہبی اقتدار پر مبنی ہیں۔ ہماری شراکت داری مشترکہ اہداف اور خوشحال مستقبل پر مبنی ہے۔ IT اور کانکنی میں تعاون دونوں ممالک کے لیے انتہائی مفید ہے۔ سعودی وفد کی خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے ایپیکس کمیٹی سے بھی ملاقات۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے ملاقات میں خصوصی طور پر شرکت کی۔ ایپیکس کمیٹی کی جانب سے سعودی وفد کو سرمایہ کاری کے منصوبوں پر بریفنگ بھی دی گئی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس۔ شرکاء کا مسلح افواج کی حوصلہ شکنی کے لیے بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈا مہم پر تشویش کا اظہار۔ شرکاء کے مطابق قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سیکیورٹی فورسز پر بے بنیاد الزامات ایک وتیرہ بن چکا۔ ان بے بنیاد الزامات کا مقصد عوام اور پاکستان کے مسلح افواج کے درمیان دراڑ ڈالنے کی کوشش ہے۔ ہم ایسی کاوشوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور اس کے خلاف قانون اور آئین کے مطابق سخت کارروائی کو یقینی بنایا جائے گا۔ دہشت گردوں کو کسی بھی جگہ سے فعال نہ ہونے دیں۔ آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو پوری قوم کی حمایت حاصل ہے۔ مسلح افواج پاکستان سے دہشت گردی کے خطرات کو مستقل ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ فورم کا ملک میں پائیدار سماجی اور اقتصادی ترقی کے لیے حکومت کو مکمل تعاون فراہم کرنے کا عزم۔ اسمگلنگ، ذخیرہ اندوزی، بجلی چوری اور تمام غیر قانونی تارکین کی محفوظ وطن واپسی کے لیے بھی تعاون کیا جائے گا۔ کانفرنس کے شرکاء نے بشام میں چینی شہریوں پر بزدلانہ دہشت گردانہ حملہ اور بلوچستان میں معصوم شہریوں کے بہیمانہ قتل کی مذمت کی۔ شرکاء کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ افغانستان سے سرگرم دہشت گرد گروہ علاقائی اور عالمی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ دہشت گرد سی پیک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔
सऊदी वली अहद की जानिब से पाकिस्तान में वफ्द भेजने पर मशकूर हूँ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का सऊदी वज़ीर ख़ारजा और वफ्द के एजाज़ में शाइया से खिताब। कहा, सऊदी वफ्द की पाकिस्तान आमद पर खुशी हुई। ये दौरा दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा। गुफ्तगू दोनों ममालिक के दरमियान नए दौर का आगाज करेगी। इशाये में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा ने भी शिरकत की। IMF ने पाकिस्तान में महंगाई की शरह में कमी की नवीद सुना दी। इस साल मुआशी शरह नमू 2%, अगले साल 3.5% तक जाने का इम्कान। वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल महंगाई और बेरोजगारी में भी कमी मुतवक्के। रवा साल महंगाई 24.8%, अगले साल 12.7% पर आ जाएगी। रवा साल बेरोजगारी 8% और अगले साल 7.5% रहने का इम्कान। बिजली सारिफीन पर अरबों रुपए का मजीद बोझ डालने की तैयारी कर ली गई। एक माह के लिए बिजली ₹2.94 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। इजाफा मार्च के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। FCA से मुतालिक दरख्वास्त पर पावर डिवीजन का एलामिया भी जारी। एलामिया के मुताबिक मुसलसल तीसरे महीने बिजली बिल्स में कमी की दरख्वास्त नेपरा में जमा कराई गई। मार्च के मुकाबले अप्रैल के बिल ₹7.06 से कम हुए। वफाकी वजीर ओवैस लगानी ने कहा कि फ्यूल प्राइस की मुमकिन तौर पर बचत करके समरात आवाम तक पहुंचाएंगे। पंजाब और KP हुकूमतों ने रोटी की कीमतों में कमी के अहकामात पर अमल दरामद कराने में नाकाम। लाहौर और पेशावर में हुकूमती ऐलानात के बाद भी रोटी की कीमत कम न हो सकी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में नान और रोटी पुरानी कीमतों पर ही फरोख्त होते रहे। जिला इंतजामिया हुकूमत की मुकर्रर करदा कीमतों पर अमल दरामद के लिए मुतहरिक। लाहौर में 3,500 से जायद मकामात पर चेकिंग। 79 मुकदमात दर्ज कर लिए गए। 592 रोटी और नान पॉइंट्स को जुर्माने आयद किए गए। रावलपिंडी में 68 तंदूर मालिकान को 1,70,000 रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। बुशरा बीबी की बनीकाला सब जेल से अडाला जेल मुंतकिली की दरख्वास्त खारिज कर दी गई। बुशरा बीबी की जानिब से कोई वकील इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश नहीं हुआ। बुशरा बीबी और वकला की अदम पेशी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस गुल हसन और औरंगजेब का इज़हार बरहमी। रिमार्क्स दिए, पता नहीं वो रिलीफ चाहते भी हैं या नहीं। अदालत के साथ सियासत खेल रखेंगे, मजाक बना हुआ है। कहा भी था आज सुनकर इस केस का फैसला करेंगे, फिर भी नहीं आए। शोएब शाहीन आए थे, वो भी चले गए और वापस नहीं आए। अदालत ने हुकूमती वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि दोनों तरफ से ठीक काम नहीं हो रहा। हुकूमती वकील ने कहा कि ईद पर बानी PTI और बुशरा बीबी की मुलाकात करा दी थी। दरख्वास्त खारिज होने के बाद बुशरा बीबी के वकील अदालत पहुंच गए। कहा रास्ते में नाके लगे हुए थे, इसीलिए लेट हो गए। सब जेल बनीकाला से अडाला जेल मुंतकिली से मुतालिक बहाली की दरख्वास्त दायर कर दी गई। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ की NA 130 से इंतखाबी कामयाबी को लाहौर हाई कोर्ट में कायम इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज कर दिया गया। PTI की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ इंतखाबी उज़रदारी दायर की थी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि इलेक्शन कमीशन ने कानून के मुनाफी नवाज शरीफ की जीत का नोटिफिकेशन जारी किया। हल्का NA 81 गुजरावाला से नून लीग के रहनुमा अजहर कयूम की कामयाबी का नोटिफिकेशन कल अदम करार। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार बिलाल एजाज चौधरी की रुकनीत बहाल कर दी गई। PP 133 ननकाना साहब से कामयाब होने वाले लीगी उम्मीदवार राना अरशद की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी मुअत्तल। बानी PTI किसी डील पर यकीन नहीं रखते, न किसी इदारे से किनकी कोई लड़ाई है। बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बानी PTI ने बहावल नगर वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। PTI कारकुनान के घरों पर भी बिलावजह छापे मारे गए। इस वक्त किसी IG ने माफी नहीं मांगी थी। एक मुल्क में 2 कवानीन चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट हमारी पेंडिंग पिटीशंस को सुने। बानी PTI की 3 केसेस में जमानत जरूरी है। अगर रोजाना की बुनियाद पर समाअत हो तो बानी PTI अप्रैल के महीने में ही रिहा हो जाएंगे। आज बानी PTI से पहली बार ऐसे कमरे में मुलाकात कराई गई जहां शीशे लगे हुए हैं। शीशे के कमरे में बिठाकर मुलाकात कराना कानून की खिलाफ वर्जी है। शेर अब्दुल मरवत ने कहा कि जेल हुक्काम ने अदालती अहकामात को जूते की नोक पर रखा। आज मुलाकात के दौरान जेल का अमला भी मौजूद था।
मरियम नवाज और नवाज शरीफ रोटी की कीमत चेक करने तंदूर पहुंच गए। रोटी की कीमत में कमी के बाद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का रायवंड के इलाके अड्डा प्लॉट में दुकानों का दौरा, रोटी की कीमत में कमी का जायजा लिया। लोगों में घुल मिल भी गए। तंदूर पर रोटी की क्वालिटी और वजन का भी जायजा लिया। नवाज शरीफ ने कहा कि रोटी की कीमत का खुद जायजा लेता रहा हूँगा। नान बाई को ताकीद की कि रोटी 20 रुपए में दोबारा ना दे। मरियम नवाज ने कहा कि नोटिफिकेशन आ गए हैं, 16 रुपए से ज्यादा पैसे रोटी के नहीं लेने। अगर 16 से ज्यादा कोई मांगे तो एक नंबर है, इस पर रिपोर्ट करें। वज़ीर आला मरियम नवाज ने 16 रुपए वाली रोटी लगवाकर चेक की। वज़ीर आला ने रोटी के वजन और कीमत के बारे में भी दरियाफ्त किया। ऑल पाकिस्तान नान बाई एसोसिएशन की मरकजी सदर की रिहाई के लिए 24 घंटे की डेडलाइन। इलामिया में कहा कि मरकजी सदर शफीक कुरैशी को 24 घंटे में रिहा न किया गया तो सख्त एहतजाज करेंगे। नान बाइयों का रोटी सस्ती करने के हुकूमती फैसले के खिलाफ लियाकत बाग रावलपिंडी में इजलास। नान बाई एसोसिएशन ने कहा कि हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं कि आटा महंगा खरीद कर सस्ती रोटी दें। गैस बिजली सस्ती की जाए, आटे की बोरी 500 रुपए सस्ती हो, रोटी 50% सस्ती मांग रखे गए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील करते हैं कि हम पर रहम करें। बानी पीटीआई का मौक़िफ़ है, मैंने साइफर की कॉपी वसूल की थी मगर दफ्तर से वो गायब हो गई। बैरिस्टर सलमान सफ्तर के साइफर अपीलों पर दलाइल। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। आजम खान का बयान मौजूद है, इसने कॉपी बानी पीटीआई को दी थी। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि हमें यह चीज समझाएं कि आपको कॉपी मिली ही नहीं या आपने वसूल करने के बाद वापस कर दी। बैरिस्टर सलमान सफ्तर ने कहा कि आजम खान ने साइफर की कॉपी वसूल की थी तो वापस करने की जिम्मेदारी भी इन्हीं की थी। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट की तामीर में 7 अरब की करप्शन। नैब ने कई सालों बाद इंक्वायरी मुकम्मल कर ली। इंक्वायरी मुकम्मल होते ही केस बंद कर दिया गया। मजीद तहकीकात के लिए FIA को मुरासला लिखा दिया गया। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट की तामीर में बेज़ाब्तियों की गई थी। बेज़ाब्तियां सिविल एविएशन की जानिब से गैर कानूनी अदायगियों की सूरत में सामने आई थी। ठेकेदार को इजाफी रकम अदा की गई और तामीरात गैर मयारी थी। सिविल एविएशन ने भी करप्शन करने पर अपने अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की थी। साबिक हुकूमत ने यह केस नैब के हवाले किया था। नैब ने भारी करप्शन का केस खत्म करके FIA को कार्रवाई का कह दिया। पिशावर बस रैपिड ट्रांस को सालाना अरबों रुपए के खसारे का सामना। दस्तावेजात के मुताबिक BRT के मेगा प्रोजेक्ट चिमकनी और हयाताबाद प्लाजे अभी तक मुकम्मल नहीं हो सके। प्लाजों पर तामीराती काम मुकम्मल न होने के बाइस बस सर्विस मुतासर हो रही। BRT प्लाजों के तामीराती काम की बरवक्त अदम तकमील के नतीजे में तामीराती लागत भी बढ़ चुकी है। हुकूमत को 300 मिलियन रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका। पीपल्स पार्टी की वजारतों में आने के लिए कोई ऑफर नहीं हुई। कमर जमान कायरा की APN न्यूज के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू। कहा ऐसी कोई ऑफर आई तो बाहमी मुशावरत से फैसला किया जाएगा। हर जमात के सियासी इशूज पर मुख्तलिफ राय होती है। हुकूमत को वक्त देना चाहिए। इन्हें इक़्तिदार संभाले हुए थोड़ा ही वक्त हुआ है। हुकूमत को सपोर्ट कर रखे गए लेकिन इसका हिस्सा नहीं है। हर हुकूमत चाहती है अवाम को रिलीफ दिया जाए। पीपल्स पार्टी सूबाई खुद मुख्तारी और 18वीं तरमीम की बुनियाद पर खड़ी है। PTI सिंध को कराची में जलसे की इजाजत न मिलने की दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत, डिप्टी कमिश्नर और फरीकैन से 19 अप्रैल को जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस अकील अहमद ने रिमार्क्स ये दिए कि ये किसी से भीख नहीं मांग रहे। हमने पहले भी जलसे की इजाजत दी थी, नहीं करने दिया गया। इंतजामिया ने इजाजत देनी है तो दे, दरख्वास्त मुस्तरद करनी है तो वजूहात के साथ जवाब जमा कराया जाए। बारिशों से चारसदा में छत गिरने से 2 बच्चियां जान बहक हो चुकी। नौशहरा में दराए काबुल में ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 1,92,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। पीर सबाक, मिस्र बांडा, नौशहरा कला में पानी घरों में दाखिल। जिला इंतजामिया ने तमाम इदारों को अलर्ट कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में 4 रोज से जारी बारिशों से हादसात में 21 अफराद जान बहक और 32 जख्मी हो चुके। PTM ने रिपोर्ट जारी कर दी। वज़ीर आला अली अमीन गन्नापुर की हिदायत पर लवाहिकीन को इमदादी चेक दिए जाएंगे। महकमे मौसमियात की 18 से 22 अप्रैल तक खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और बालाई पंजाब में मजीद बारिशों की पेशन गोई। आज़ाद कश्मीर में हालिया बारिशों के बाइस 8 अफराद जाँ बहक और 11 जख्मी हुए। 10 मकानात को मुकम्मल और 37 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा।
STMA نے 18 سے 22 اپریل تک مزید بارشوں کے لیے بھی الرٹ جاری کر دیا۔ متحدہ عرب امارات میں 24 گھنٹے سے جاری طوفانی بارشیں نظام زندگی درہم برہم۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق شدید بارشوں کے باعث دبئی ایئرپورٹ پر فلائٹ شیڈول بھی متاثر۔ دبئی اور ابوظہبی میں متعدد اہم شاہراہیں طوفانی بارش کے باعث زیر آب آ چکی۔ نئی ایڈوائزری میں بارش، آسمانی بجلی اور اولے پڑنے کی بھی پیشن گوئی کی گئی۔